Welcome back, students. As our explanation of chapter crop production and management completed, so today we are going to discuss exercise. Okay, already I explained exercise during my online class, but during online class there is some network issue, so some students are not getting answer of some question. That's why I am making this video in which I will explain again NCERT exercise of chapter crop production and management, so you can get answer and you can write these answer in proper manner. Okay, and I think all concept of this chapter are clear to you. Okay, so this is only a supporting method by which you can write answer, but answer you have to create on. Okay, so students, you can see in question 1 some blanks are given, fill in the blanks are given. In these blanks you have to fill given option are given. So first question is, the same kind of the plant grown and cultivated on a large scale at a place is called. Okay, so आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम कभी भी लार्ज स्केल में प्लांट को ग्रो करते हैं किसी फील्ड में, किसी प्लेस पे, तो उनको क्या बोलते हैं? एज यू नो डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, सो आंसर विल बी क्रॉप. क्रॉप क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं. क्रॉप इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एट अ फील्ड. जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड पर अगर हमने लार्ज अमाउंट में सेम काइंड के प्लांट ग्रो कर दी तो उसको क्रॉप बोलेंगे. सो क्रॉप आर द ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ द प्लांट इन लार्ज फील्ड. ओके, सो ऑप्शन विल बी क्रॉप. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट the first step before growing crop is on the soil. So first step growing crop on the soil, generally we are performing preparation of soil. So this is a preparation of soil. ओके, जैसे हम एग्जाम देने से पहले पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमें फील्ड पे क्रॉप ग्रो करने के लिए पहले उसको तैयार करना पड़ेगा कि क्रॉप ग्रो करने के लिए हमारा फील्ड तैयार है या नहीं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंसिस्ट टू ऑपरेशन which we are performing. One is plowing and another is leveling. So these two process we are performing in field. Clear? लेकिन during my online class one question asked about, sir, can we perform irrigation before sowing seeds? Yes, if there is a requirement in field, if soil is dry, then before preparation we have to irrigate field, because if soil is too hard then we cannot dig into that by using penetrator. Okay, so firstly we will irrigate. So that time irrigation will be the part of preparation of soil, because we are not transferring water, we are not supplying water to crop. Okay, here only we are supplying water to help in preparation. Clear? So first मेथड जब भी पूछा जाएगा तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही होगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उसमें दिया डैमेज सीड्स वुड. अच्छा, आपको हमने एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें हमने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में हमने वाटर को फिल किया था. यू कैन सी आई एम टेकिंग वाटर इन दैट कंटेनर. इफ आई विल पुट सम सीड्स इन दैट, सो व्हाट विल हैपन? हेल्दी सीड्स विल गोज डाउन. हेल्दी सीड्स विल गोज डाउन and damaged seed will float over water surface. Okay, so damaged seeds will be here and healthy seeds will be in bottom of the container. So आपको यहाँ पूछा गया what will happen, so answer will be float. डैमेज सीड्स विल फ्लोट. अगर इसी को ऐसे पूछा जा
हेल्दी सीड्स, तो आप बोलेंगे हेल्दी सीड्स विल सिंक इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट अमाउंट। तो देखिए अगर हमें क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए। जनरली गमले में अगर हमने एक पौधा उगाया और हमने कुछ दिनों तक वाटर की सप्लाई नहीं की या सॉइल हमारा जो है प्रॉपर नरिश्ड नहीं है तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, कई जगह देखते हैं कि हम फील्ड में, एक ही फील्ड है जिसमें एक कॉर्नर पे बहुत अच्छा क्रॉप है, दूसरे कॉर्नर पे उतना अच्छा नहीं है। क्यों? हो सकता है उस कॉर्नर पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो, उस कॉर्नर पे वाटर की सप्लाई कम हो रही, उस कॉर्नर पे सनलाइट नहीं मिल रहा हो। कई बार आप देखते हैं एक बड़े ट्री के पीछे कुछ प्लांट हाइड हो जाते हैं तो सनलाइट वहां तक नहीं पहुंचा, दैट लार्ज ट्री होल्ड और सनलाइट and that sunlight not transfer to crop। okay, so यहाँ पे हमें उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट। सो आई discuss 16 nutrients are required by the plant. Out of these 16 nutrients, some nutrients required by the plant in large amount and some required in smaller amount. So 7 nutrients are required in less amount and 6 are required in large amount. Okay, some nutrients are supplied by water, some nutrients are supplied by air and some nutrients are supplied by manure or fertilizer. Clear? So ये था हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का। हमारे ख्याल से सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसमें ये प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में सारे आंसर लिखेंगे। क्लियर? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज। ओके, सो आई विल नॉट राइट होल टेबल हियर, आई विल राइट ओनली सम क्रॉप। जैसे यहाँ पे दिया खरीफ क्रॉप, सो आपको ऑप्शन में दिया है खरीफ क्रॉप के नाम दिए, सो आपको उसको मैच करना है। सो एज वी डिस्कस्ड इन अवर वीडियो क्लास आल्सो, खरीफ क्रॉप आर, सो खरीफ क्रॉप जनरली ग्रोन इन जून टू सितंबर ड्यूरेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इज जून टू सितंबर, इन विच कौन सा सीजन होता है, ये वो सीजन होता है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वाटर की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, दूसरा हमारा सराउंडिंग कैसा होगा, वार्मथ होगा, मींस टेम्परेचर भी हाई होगा, हाई टेम्परेचर। तो इस समय वो क्रॉप ग्रो करेंगे जिनको ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे वो क्रॉप ग्रो करते हैं जिनको वाटर बहुत चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। जैसे इस समय आप देखेंगे तो बरसात के सीजन के समय, मतलब जून और जुलाई अक्टूबर सितंबर के समय में लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सो दैट इज टू हाई टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो maximum. So we are growing in this season paddy, we are growing in this season maize, we are growing in this season sesame मतलब आपने देखा होगा तिल जो हम यूज करते हैं ब्लैक और व्हाइट, एंड ऑल्सो वी कैन ग्रो हियर ग्रीन ग्राम, ऑल्सो वी कैन ग्रो हियर ब्लैक। ओके, इसमें से आप मैच कर लेना जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आई विल नॉट एक्सप्लेन। ओके, सो आपको समझ में आ गया खरीफ क्रॉप को क्या होता है। खरीफ क्रॉप आर द क्रॉप व्हिच ग्रोन जनरली इन दिस सीजन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम वाटर एंड हाई टेम्परेचर। सो दोज क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हाई टेम्परेचर, सो वी कैन ग्रो क्रॉप हियर इन दिस सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप का आंसर मैच करना है, कौन से क्रॉप रबी होते हैं। ठीक है, सो रबी क्रॉप के बारे में हम थोड़ा डिटेल कर लें। तो रबी क्रॉप का जनरली सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च। ओके, इन दिस सीजन टेम्परेचर इज लो। आप देखिए सर्दी का समय होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर लो रहेगा इस समय में। ठीक है, इस समय में वर्षा नहीं होती, मींस वाटर अवेलेबिलिटी इन फील्ड विल आल्सो बी लेस। Water available in field
फील्ड इज लेस। ओके, तो इस समय वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जिनको कम टेम्परेचर और कम वाटर की जरूरत होगी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप वी कैन ग्रो? सो वी कैन ग्रो व्हीट, गेहूं, वी कैन ग्रो बार्ली, वी कैन ग्रो mustard, we can grow linseed, we can grow gram, we can grow pea. Number of crops are there. Okay, so these crops we can grow in this season. जायद क्रॉप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में भी, और हम वीडियो भी भेज चुके हैं। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं तो आप देखेंगे मार्च से लेके और जून तक के बीच में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उनको जायद क्रॉप बोलते हैं। उन जायद क्रॉप को भी हाई टेम्परेचर वाले सीजन में ही ग्रो करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है बट वाटर की अवेलेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देखते हैं बिटर गार्ड मीन्स करेला, कोकुम्बर, खीरा, मस्क मेलन, वाटरमेलन, इनकी अवेलेबिलिटी अभी मार्केट में है। दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स इन दिस सीजन मीन्स मार्च टू जुलाई, इनको बोलते हैं जायद क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। यहाँ दिया है केमिकल फर्टिलाइजर, तो आपको पता है फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस, क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिफरेंशिएट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आप बोलेंगे फर्टिलाइजर आर द, ये क्या है, हम छोटे छोटे वो लिखेंगे पॉइंट, आप इनको एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एंड मैन्योर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसको हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक। ये कहाँ प्रिपेयर होते हैं? दीज प्रिपेयर इन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ प्रिपेयर होते हैं? आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। जब आप नोट्स बनाएंगे आप लिखेंगे फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री, मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इनको हम फील्ड में प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये किससे बनते हैं? ये केमिकल से बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं? केमिकल इज द, केमिकल्स आर बेसिक मटेरियल, केमिकल्स इनके लिए बेसिक मटेरियल है, ठीक है। इनके लिए बेसिक मटेरियल क्या है? इनके लिए बेसिक मटेरियल है एनिमल वेस्ट, ठीक है। एनिमल वेस्ट हम यूज करेंगे, प्लांट वेस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। और क्या यूज कर लेंगे? हाउस होल्ड वेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। अब आगे पॉइंट पे आते हैं। ये क्या करेंगे? दीज फर्टिलाइजर विल पॉल्यूट वाटर। ओके, ये वाटर पॉल्यूट का रीजन हो सकते हैं। दीज आर डज नॉट पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल। ओके, ये किसको पॉल्यूट करेंगे? वाटर एंड सॉइल दोनों को ही पॉल्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 4 पॉइंट हो गए, 3-4 पॉइंट और हम देखेंगे इनके बारे में। आप अपने नोट्स बनाना है इनके पे प्रॉपर। 5वां पॉइंट, अब बात करते हैं इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सो फर्टिलाइजर आर रिच ओनली इन सम न्यूट्रिएंट, रिच इन स्पेसिफिक nutrients, does not contain any specific nutrients। ओके, इनके पास कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होता। अच्छा, इनके पास कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो आप बताएं। दीज आर रिच इन NPK, आपको हम पहले बता चुके हैं क्या है, नाइट्रोजन, P क्या है, फास्फोरस, K क्या है, पोटेशियम। सो दीज आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, बट दीज मैन्योर डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये क्या करते हैं? एड ह्यूम्स इन फील्ड, ये फील्ड में ह्यूम्स को ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ तक देख आ रहा है।
ओके नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ये कवर करेगा पूरे कोड को। ओके सो ये क्या करते हैं, मैन्योर एंड ह्यूम्स इन द फील्ड, आप यहाँ लिखेंगे डज नॉट, इसको पूरा सेंटेंस बना लेना। यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते, बट दीज डज नॉट। ये क्या करते हैं, चेंज टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर चेंज करते हैं, ये डज नॉट। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इनके बारे में, ये क्या करते हैं, मैन्योर, मैन्योर्स आर इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैन्योर्स आर चेंजिंग टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, ह्यूम्स इन द फील्ड, ये इनमें से कुछ भी नहीं करते, ठीक है। मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर वहां पे अर्थवॉर्म और सॉइल को एरेटेट करते हैं, हेल्प इन एरेशन ऑफ सॉइल, ये डज नॉट। ये क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, डज नॉट। ओके सो आप 5 पॉइंट तो ये जो है इसकी एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज पे लिख सकते हो, जब भी आपको पूछा जाए राइट एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर और राइट डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, सो दीज आर द पॉइंट। क्लियर, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ओके सम क्वेश्चन समटाइम्स आस्क ओनली ऑन बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये आपको बता रहे हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्लियर, ये 10 के 10 पॉइंट आपकी नोटबुक में होने चाहिए। व्हेन आई विल वेरीफाई योर नोटबुक आई विल चेक ऑल पॉइंट्स आर इन योर नोटबुक और नॉट। ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप पढ़ी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अभी बात कीजिए। Preparation of soil means loosening and turning of soil is a one step of preparation, and after that labeling of the soil is another step. So both steps are including in preparation of soil. So यहाँ पर हम डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी I given answer of this question in detail. So I am writing plowing का मतलब होता है loosening and turning of the soil. Okay, what kind of implements we are using for plowing? So implements we are using for plowing are क्या क्या यूज करते हैं, तो हम ये यूज करते हैं प्लो और कल्टीवेटर। ओके चलिए सेकेंड स्टेप था प्रिपरेशन का ही, लेबलिंग। तो लेबलिंग में हम क्या यूज करते हैं, इसमें इंप्लीमेंट आपका आएगा, इंप्लीमेंट विल बी लेबलर। ओके सो दीज विल बी स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, you can write in detail. I am giving one step, so you can write, you can create answer in your way. Okay, next question is sowing. So sowing already we discussed. Sowing क्या होता है, sowing होता है फील्ड में सीड्स को सो करना। So there are two methods by which we can sow. One is manual method, another is by using tools. Okay, सो टूल्स का यूज कर सकते हैं। मैनुअल में क्या करें, मैनुअल में 2 होते हैं। वन मेथड इज इन विच वी आर स्कैटरिंग सीड्स इन फील्ड, लाइक दैट आई विल होल्ड सीड्स इन माय फिस्ट एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, सो दैट मेथड इज नोन एज
broadcasting method means distribution of seeds by hand or scattering of seeds by hand is known as broadcasting. Another method here is plantation. Plantation in which what we are doing, we are transplanting saplings और seedlings from a nursery to main fields. जैसे आप देख रहे हैं कि हम जनरली अपने गार्डनिंग पर्पस के लिए चिली की, टोमेटो के, इस तरह के प्लांट्स को क्या करते हैं, या डेकोरेटिव प्लांट्स को क्या करते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं और फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं. टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं? सो टूल्स यूज करते हैं यहाँ पर हम सीड ड्रिल का. So seed drill is a method which is beneficial because in this method we can distribute seeds at proper depth, okay, at proper distance. मतलब अगर सीड्स को एक को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो दूसरा सीड्स यहाँ होगा, तो इनके बीच में प्रॉपर गैप रहेगा और प्रॉपर डेप्थ में रहेंगे. जैसे ये हमारा सॉइल का सरफेस है, तो ये इसको जिस डेप्थ में हमें रखे हुए हैं उस डेप्थ में हम इनको शो कर सकते हैं. सो सोइंग इज द मेथड इन विच वी आर sowing seeds. Clear? Or you can refer my video before I send link to you. Okay. Now next is weeding. Weeding क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए weeds क्या होते हैं. So weeds आपको बताया था, these are unwanted plant. ये unwanted plant हैं which grown, जो ग्रो हो जाते हैं किसके साथ, which grown along with main crop. ओके, मेन क्रॉप के साथ ग्रोन होने वाले प्लांट को हम अनवांटेड प्लांट या वीड्स बोलते हैं. इनके रिमूवल को मींस वीडिंग क्या है? वीडिंग इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स. ठीक है, अब इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है. ठीक है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स. तो जल्दी जल्दी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम ये सारा कुछ कंटेंट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं. दिस इज द ओनली फॉर रेफरेंस पर्पज, सो यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स, बट यू कैन include these points. Okay, based on these points you can write your answer. So method of removal of weeds, तो आपको बताया था पहला होता है मैनुअल. मैनुअल में हम क्या कर सकते हैं? You can uproot plant, uproot कर सकते हैं. दूसरा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे खुरपी, ट्रॉवल, खुरपी और ट्रॉवल का यूज कर सकते हैं. इससे हम रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है. नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं केमिकल्स को. तो केमिकल्स कौन कौन सी यूज करते हैं? ठीक है, तो जिन केमिकल्स को हम वीड्स को रिमूव करने के लिए बोलते हैं उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स. तो हम यहाँ पे वीडीसाइड्स का यूज कर सकते हैं. वीडीसाइड ऑफ केमिकल for removal of weeds. ओके, वीड्स को रिमूव करने के लिए जो केमिकल का यूज करते हैं तो आपको बताया था MCPA और 2,4-D. ये दो केमिकल्स का यूज करते हैं हम. ठीक है, इनके नाम हम पहले बता चुके हैं, इनको नोट कर लेना. केमिकल्स कौन कौन सी यूज करते हैं. चलिए, ये हो गया बीडिंग वाला. अब है थ्रेसिंग प्रोसेस. तो थ्रेसिंग प्रोसेस का परफॉर्म की जाती है. तो सभी लोग अवेयर होंगे, थ्रेसिंग जनरली परफॉर्म आफ्टर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप को जब फील्ड से काट लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. ठीक है, तो वो पढ़ चुके हैं कौन कौन से टूल यूज करते हैं, कैसे हार्वेस्ट करते हैं. ठीक है, अब बात कर रहे हैं थ्रेसिंग की. तो आप लिखेंगे threshing is the operation which performed after harvesting in which we are separating. क्या सेपरेट कर रहे हैं? We are यहाँ पे लिखोगे आफ्टर हार्वेस्टिंग. ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ये हम इसको परफॉर्म करते हैं. वी आर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ. चाफ से सेपरेट करते हैं. इम्प्लीमेंट क्या होता है? ये जिस मशीन का यूज करते हैं, दैट मशीन इज नॉन एज थ्रेशर.
ओके, तो थ्रेशर की हेल्प से हम ग्रेन्स को चाप से सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेन कम था, चाप ज़्यादा था। ठीक है, चाप से ग्रेन को सेपरेट कर लिया। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, ग्रेन्स के साथ कुछ चाप रह जाता है। ये ग्रेन्स थे हमारे, जैसे मान लीजिए ये ग्रेन्स हैं, इन ग्रेन्स में कुछ चाप रह गया, तो इस चाप को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो आप देखेंगे विनोइंग इज द प्रोसेस इन विच वी आर रिमूविंग चाप फ्रॉम ग्रेन्स, क्योंकि चाप कम क्वांटिटी में था, ठीक है, लेकिन आपके ग्रेन ज़्यादा थे तो हम चाप को ग्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज विनोइंग प्रोसेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट देन मैन्योर। ऑलरेडी वी डिस्कस हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट देन मैन्योर, 10 पॉइंट वी डिस्कस, यू हैव टू राइट दीज 10 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन, डेस्क्राइब टू मेथड। सो इरिगेशन क्या होता है, पढ़ ही चुके थे। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियली सप्लाई ऑफ वाटर इन फील्ड अकॉर्डिंग टू, किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर क्रॉप को रिक्वायर्ड नहीं है और अपने बाद में पानी दे दिया तो हो गया काम, है ना, अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट। सो जनरली आप देखते हैं जैसे मस्टर्ड की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें अगर रिक्वायर्ड है तो हम सीजन में या पूरे क्रॉप के जो स्पान है वो उस पूरे लाइफ स्पान में एक बार वाटर इरिगेट करते हैं। ठीक है, अगर जैसे बीट है तो बीट में हम जनरली एक मंथ के ड्यूरेशन में 3 बार वाटर को इरिगेट कर देते हैं। ठीक है, बीट को इरिगेट कर देते हैं। तो इस तरह से बीट की रिक्वायरमेंट अलग है, मस्टर्ड की अलग है, पी की अलग है, ग्राउंड की अलग है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है पी क्रॉप की, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर को सप्लाई करना। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेथड इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। सो मेथड है आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप क्यों आपका वाटर को कंजर्व करने का मेथड है? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में वी आर सप्लाइंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द फील्ड। आपको हम बता चुके हैं इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है वाटर और नियर बाय टू रूट जाता है। सो वी आर नॉट वेस्टिंग वाटर इन दिस प्रोसेस, एंड जनरली दिस प्रोसेस इज यूजिंग वेयर वाटर इज इन वेयर इज अ वाटर स्कैर्सिटी। क्लियर? नाउ वाटर इज इन लेस अमाउंट। Second method which we are using to conserve water for irrigation purpose, that is sprinkler method। क्योंकि आप जनरली जितने मेथड मॉडर्न मेथड थे उसमें हम फील्ड में पानी को फैला देते थे। ठीक है, तो उसमें लाखों लीटर पानी यूज होता था, लेकिन यहाँ पर हम स्प्रिंकलर में कम अमाउंट ऑफ वाटर को लार्ज फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रेन्स। ओके, तो स्प्रिंकलर मेथड, दीज बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू कंजर्व वाटर। चलिए समझ आ गया होगा, इसको अपने उसमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक पॉइंट आपको दे रहे हैं, ऑलरेडी ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ बीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। यही एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था वीडियो क्लास में, तो इसका आंसर हमने वहाँ बता दिया था, लेकिन फिर से आपको देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है बीट को हम किस सीजन, 2 सीजन थे हमारे, ठीक है, एक था रबी सीजन, दूसरा था खरीफ। खरीफ का मतलब हो गया वो सीजन जो कब से कब तक था, आपने बोला जून से लेके जून टू सितंबर का सीजन। ओके, ये सीजन कब से कब तक था? ये सीजन था अक्टूबर से मार्च का। ठीक है, अब जब अक्टूबर से मार्च का है तो टेम्परेचर क्या रहेगा इस सीजन में? टेम्परेचर विल बी वेरी लो, टेम्परेचर विल बी, ऐसे लिख देते हैं, टेम्परेचर विल बी लो। ठीक है, हियर वाटर अवेलेबिलिटी इन फील्ड, रेन तो होगी नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी? वाटर अवेलेबिलिटी विल बी लेस इन फील्ड। ठीक है, हियर
देखिए टेम्परेचर क्या होगा, ये समर सीजन है तो टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ क्या होगा, वाटर अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी होती है तो वर्षा का सीजन, वाटर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, यहाँ पर वाटर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होगा। क्लियर? सो अब हम वो क्रॉप तो यहाँ ग्रो नहीं कर सकते जो कम पानी चाहिए, जिनको वो क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते जिनको कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए बीट हमारा ग्रो होता है इस सीजन में, जिसको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बीट को यहाँ ग्रो करने जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। दूसरा यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी विल सो सीड्स ऑफ बीट हियर देन बीट विल नॉट जर्मिनेट। अगर वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फील्ड पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वो पहले जर्मिनेट नहीं। अगर जर्मिनेट हो भी गए देन दे विल रोटन, वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है, उनकी जड़ें खराब हो जाएंगी। उनके प्लांट जनरली आपने देखा भी होगा, अगर किसी फील्ड में वाटर बहुत समय तक भरा रहता है, उसमें कोई क्रॉप ग्रो करते तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाती, खराब हो जाती। तो इस वजह से हम बीट को यहाँ ग्रो नहीं करते। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको, कैन वी ग्रो पैडी इन रबी सीजन? नो, बिकॉज पैडी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पैडी को क्या चाहिए, पैडी को चाहिए आपका फ्लड इरीगेशन। फ्लड मतलब जब पानी फील्ड में भरा रहे हमेशा, ठीक है, तो इस सीजन में तो पानी है नहीं, कम है, हमें आर्टिफिशियली इरीगेट करना पड़ेगा, तो पैडी ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ कम है तो पैडी का प्रोडक्शन टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट होगा। तो ये सब पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेड ऑफ क्रॉप इन फील्ड। ये क्वेश्चन भी ठीक है। इसमें पूछा गया है कि अगर हम फील्ड में कंटिन्यूअस क्रॉप ग्रो करते रहे तो क्या होगा। अच्छा आप ये बताइए, अगर हम आपको बोले कि आप लगातार काम करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, दिन पूरा दिन पढ़ो 12 घंटे, पूरा रात पढ़ो 12 घंटे, ठीक है, तो कितने समय पढ़ सकते हो? मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बोलोगे बहुत होगा, ठीक है, अब हिम्मत नहीं है। अगर हम आपको बोले दौड़ते रहो लगातार फील्ड में, तो कितने घंटे दौड़ोगे? 1 2 3, फिर बोलोगे अब नहीं, अब तो एनर्जी ही नहीं। इन सिमिलर मैनर इफ वी आर ग्रोइंग क्रॉप इन फील्ड, हमारा एक फील्ड है, इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे बीट की क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक है, यहाँ पे बीट ग्रो किया। अब आप देखिए जब बीट को हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया इसको, wheat is harvested and we are not leaving this field empty. Now another crop we are growing, ठीक है, हमने यहाँ पे दूसरी क्रॉप ग्रो कर ली। मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्रीन ग्राम ग्रो कर लिया, हमने यहाँ पे पैडी ग्रो कर ली, कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर लिया। जैसे ही पैडी हार्वेस्ट हुआ तीसरा क्रॉप ग्रो कर लिया। ये वी आर ग्रोइंग क्रॉप इन कंटिन्यूअस मैनर इन फील्ड, देन दीज क्रॉप्स आर गेट absorbing nutrients in continuous manner, so there will be a lacking of nutrients, and after some year this field will be barren. इसकी फर्टिलिटी तो खत्म हो जाएगी, ये आगे जो है क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो क्रॉप यहाँ पे फिर जो है ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको कुछ समय के लिए हम ब्लैंक छोड़ दें, देन इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, okay, it will nourish. If soil will nourish, then we can get yield production, but according to our requirement is too high, that's why we are growing crop in continuation manner, okay. So this will badly affect our field if we will grow crop in continuation. अगर हाँ हमें ग्रो ही करना है continuous manner में, then we can rotate crop in एवरी सीजन। जैसे इस सीजन में, इस रबी सीजन में अगर हमने खरीफ ग्रो की है तो अनदर रबी सीजन में हम जो है उसमें पी ग्रो कर लें, उसके अगले सीजन में हम मस्टर्ड ग्रो कर लें। सो इन दिस मैनर डिफरेंट क्रॉप एब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड व्हेन दिस सॉइल विल बी empty or we will grow another crop, so that soil will absorb nutrients from that different kind of the crop, okay. तो इस तरह से अपने आपको नरिश करते रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा,
अगर हमें लगातार क्रॉपों को ग्रो करना है तो हमें फिर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करने पड़ेंगे। जब हम फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो ये सॉइल पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ सालों के बाद ये अपनी फर्टिलिटी को खो देगी। और आपको हमने एक पॉइंट बताया, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर दे सेड till 2030 our 30% fertile land will lose its fertility, मतलब हमारे इंडिया की 30% जमीन 2030 तक अपनी फर्टिलिटी खो देगी। मतलब हम आगे आने वाले समय में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन बी कंट्रोल। तो अभी डिस्कस किया था बीड्स क्या होते हैं और उनको कंट्रोल, तो कंट्रोल करने के बीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन अलोंग विद द पैरेलल टू द फील्ड। व्हाट दे डू, बीड्स करते क्या हैं, बीड्स आर कंपीटिंग विद मैन क्रॉप फॉर देयर सर्वाइवल, ओके, फॉर न्यूट्रिएंट। सो जैसे हमारे यहाँ पे बीट ग्रो कर दिया, ये बीट की क्रॉप है, ठीक है, इसके बीच में कोई जो है आपके अनवांटेड प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अब इनको भी सनलाइट चाहिए, इनको भी वाटर चाहिए, इनको भी जो है न्यूट्रिएंट चाहिए। सो दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फील्ड, दे विल फाइट फॉर सनलाइट, दे विल फाइट फॉर वाटर, ओके, जिसकी वजह से इनके लिए जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो अफेक्ट होगी। जब इनके लिए अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी तो हमें ईल्ड प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमें इनको खत्म करना पड़ेगा वीड्स को। सो वी विल स्प्रे वीडीसाइड्स या केमिकल को स्प्रे कर देंगे, केमिकल जाके इनको क्या कर देंगे, डेस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर हम मैनुअल मेथड का यूज कर सकते हैं। इनको हमने यहाँ से अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया, जब ये उखाड़ दिया तो मेन क्रॉप बचेगी, मेन क्रॉप अपने ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी। सो मैनुअल मेथड आर we are using for removal of this, we are using chemicals, okay, and we already discussed in detail about this. So these are the important point which you have to consider for your answer, okay. Now tomorrow we will meet in our another online class, okay, till namaskar, have a nice day, okay.